हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई एम छवि एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस मेकअप लुक दैट आई क्रिएटेड, जो आप भी कर सकते हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस। ये काफी एक मिनिमलिस्ट सा बहुत ही ग्लैम देसी मेकअप लुक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल पिन माई हेयर बैक, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब मेकअप करते टाइम बाल एकदम ऐसे आंखों के सामने आते हैं। और मैं बहुत 4 साल की बच्ची लग रही हूँ, बट इट्स ओके, वी हैव टू डू आवर मेकअप। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेकअप नाउ। सो फर्स्टली आई विल अप्लाई सम स्ट्रोब क्रीम, क्योंकि मैं आज अपना मेकअप लुक बहुत ही ऐसा मिनिमल ड्यूई ग्लोई टाइप का ही चाहती हूँ। एंड आई लाइक माई बेस टू लुक अ लिटिल ड्यूई एंड ग्लोई. So for that, I am going to use a strobe cream. I really like this strobe cream. By the way, the strobe cream that I'm using is from MAC, and this strobe cream has been a staple in my makeup kit from, I guess, 4 years something. Yeah, I have been using this strobe cream a lot since the day I have bought this, because it works really good. Like you can see, इसने instantly कितना अच्छा glow दिया है एक मेरे face पे. And now I'll be using a lip balm to just moisturize my lips and prepare it for the lipstick that I will apply. It is really important to apply a lip balm on your lips, because what happens is sometimes ना कुछ लिपस्टिक्स इतना ड्राइंग होती है दैट वो ना फिर वो क्रीजेस में बैठ जाती है आपकी लिप्स, एंड इट डज नॉट लुक गुड एट ऑल. तो उसके लिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट योर लिप्स विद समथिंग वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग. सो आई यूज दिस Laneige का lip balm to hydrate my lips for that. So now that we are done with the basic prepping that I do for my makeup, now we'll move on to the base. And for the base, I am going to use this e.l.f. का Halo Glow liquid filter. इट इज़ अ रियली गुड बेस प्रोडक्ट. ये आपकी स्किन को एक बहुत ही अच्छा ग्लोई और ड्यूई इफेक्ट देता है, जो बहुत अच्छा लगता है. एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी ग्लोई एंड ड्यूई इफेक्ट, जो आई थिंक ऑल ऑफ अस लाइक्स अ लॉट. मतलब ग्लोई और ड्यूई बनाता है आपके मेकअप को बहुत ज्यादा. एंड आई रियली इंजॉय यूजिंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज आई लव ग्लोई एंड ड्यूई मेकअप. सो आई यूज दिस वन अ लॉट. एंड इट ऑल्सो डजंट फील स्टिकी और हैवी ऑन योर स्किन, जो बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील होता है आपकी स्किन पे. आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. Now I'll blend this with the help of a blender. I am not going to use any foundation today because I am aiming for a very nice minimalist kind of a makeup today. So I'll not use a foundation. This is the only base product that I will use as my base, and it also gives थोड़ी coverage. Like if you're doing a very minimal and everyday kind of a makeup now, तो ये उतनी needed coverage तो दे देता है कि आपको किसी foundation की जरूरत नहीं पड़ेगी. Like जो आपके पास basic थोड़ी बहुत pigmentation या कुछ acne scars हैं उनको cover कर लेता है. So you do not really need a foundation after this. So now I will use a mix of these two concealers for concealing my under eyes. One is from L'Oreal and the another one is from Too Faced. I am using a concoction of these two because ये बहुत ही high coverage देते हैं. And nowadays मुझे थोड़े dark circles हो गए हैं because of my bad sleeping schedule. But I am going to work on that. But these concealers really give a very high coverage on your under eyes. If you have very dark circles, so I think you should try the concoction of these two concealers. ये बहुत अच्छा काम करते हैं आपकी स्किन पे. And I am going to use this on my under eyes, the infallible one and the Too Faced one. I will apply both of these थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये दोनों ही काफ़ी हाई कवरेज कंसीलर्स हैं. तो यू रियली हैव टू टेक बहुत स्मॉल क्वांटिटी. सो नाउ आई विल ब्लेंड दिस कंसीलर विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर ओनली, बिकॉज आई एम एमिंग फॉर अ very everyday kind of a look. So I am not going to use a brush today because वो बहुत ज़्यादा ही coverage देते हैं फिर. And I really like the concoction of these two concealers. ये बहुत pretty सा एक base provide करते हैं आपके face को. You do not really need a foundation after this. And these are my favorite concealer. Like these are the only two concealers that I use for my makeup routines, and I just love these concealers a lot. So now see, this is what I was talking about. Even after applying my concealer, जो कि काफी full coverage है, still there is a within glow from my skin. It is because of that e.l.f. का Halo Glow liquid filter. I mean, I just love that product. You guys have to try it once and you will also fall in love with that product. ये उतना अच्छा product है. And I just love the glow it provides to my face. I mean, I just love it. So now moving on to the blush, I am going to use a mix of these two blushes. I really love these two blushes. This is from She Glam and this one is from Etude House. I love these blushes. I use a mix of it because it really lasts long अगर मैं इन दोनों को mix करके use करती हूँ. And इन दोनों को mix करके जब use करो ना, तो ये जो shade भी बनता है ना, वो इतना pretty turn out होता है. I really like a mix of these two blushes. So now I have applied the concoction of these two blushes and I have to blend really fast because जो Etude House का tint है ना, अगर उसको मैंने जल्दी blend नहीं किया तो that will leave a stain on my skin, जो कि बहुत difficult होता है फिर to blend. तो I have to work really fast.
मैंने अभी ध्यान नहीं दिया हो गलती से, मतलब एट्यूड हाउस का जो टिंट है उसको दोनों साइड लगा लिया। बट अगर आप ये मेकअप लुक करें ना तो फर्स्ट आप इस साइड का ब्लेंड करें, देन आप एट्यूड हाउस इस पे लगाएं, देन ब्लेंड करें, वरना वो ना फिर स्टेन अगर छोड़ गया ना तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू blend it afterwards. And now just for a little more coverage, I am going to use a highlighting concealer, very little bit, just a छोटा सा dot under my eyes to give that highlighted kind of effect जो कि बहुत pretty लगता है. And now I will blend it with very light hands. एंड इससे ना अगर आपने गलती से ब्लश थोड़ा ज़्यादा भी लगा लिया है ना तो वो पूरा बैलेंस आउट हो जाता है, अगर आप थोड़ा हाईलाइटिंग कंसीलर लगाते हैं तो एक बहुत ही ब्लेंडेड और सीमलेस सा इफेक्ट देता है, जो आई रियली लाइक इट, यू शुड ऑल्सो. एंड आई थिंक मैंने इस स्टेप के बारे में अपने पिछले मेकअप ट्यूटोरियल्स में भी बात की है. आई रियली लाइक डूइंग दिस, अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर आफ्टर माई ब्लश, बिकॉज वो एक बहुत ही ब्लेंडेड और सीमलेस इफेक्ट देता है. सी अभी ना वो एक हार्श लाइन नहीं दिख रही है ब्लश की जो दिखती है अगर आप अपना ब्लश एकदम बाद में लगाएं. एंड नाउ आई विल यूज जस्ट द बेनेटेंट ऑन माई नोज एंड अ लिटिल बिट ऑन माई चिन, बिकॉज आई लव अप्लाइंग, मतलब बहुत से लोग हैं जिनको चिन पे लगाना पसंद नहीं है, बट आई रियली लाइक अप्लाइंग माई ब्लश ऑन माई चिन बिकॉज आई जस्ट लाइक इट. सो आई एम ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्रश जिससे मैंने अपना चीक्स का ब्लश ब्लेंड किया था. या आई एम डन. नाउ सी कितना प्रिटी ब्लश लग रहा है, लाइक वो बहुत हार्श लाइन नहीं दिख रही है, बहुत ही सीमलेस ब्लेंडेड सा. आई रियली लाइक द कंकॉक्शन ऑफ दीज टू ब्लशेस, शी ग्लैम वाला और एट्यूड हाउस का. एंड नाउ आई विल सेट माई अंडर आइज विद दी फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट. ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है एंड द गुड थिंग इज ये काफी अफोर्डेबल है, लाइक यू डू नॉट हैव टू एम्प्टी योर पॉकेट्स फॉर दिस. आई गेस दिस रिटेल्स फॉर आई गेस 200 और 250 समथिंग, लाइक एटलीस्ट ऑफ पे तो आपको मिल जाएगा 200 समथिंग का. एंड मेक श्योर कि जब भी आप अपने अंडर आइज को पाउडर करें ना तो एक बार अपना ब्लेंडर जरूर चला लें, क्योंकि वरना ना क्रीसेस जो आ जाते हैं उनमें अगर आपने पाउडर कर लिया ना तो फिर उसको फिक्स करना पॉसिबल ही नहीं है एक बार अगर आपने क्रीसेस पे पाउडर कर लिया तो. सो आई एम गोइंग टू जस्ट powder my under eyes थोड़ी सी for just setting up my concealer. I will not use powder on my whole face because I do not like it, and also मुझे पूरे फेस पे उतना ऑयल नहीं आता है, मेरी बस टी जोन ही है जहाँ मुझे थोड़ा आता है, तो मैंने बस वही सेट किया है. इफ़ यू हैव वेरी वेरी ऑयली स्किन तो आप अपने जो भी ऑयली एरियाज हो उसको ज़रूर सेट कर लें, वरना फिर आपका मेकअप वहाँ से सेपरेट होना चालू हो जाएगा. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द आईब्राउज, आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का आईब्राउ पोमेड जो कि बहुत अच्छा है और मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ करती हूँ. Like I think this is the only brow product that I have and that I use for my brows, और जो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा भी है. एंड ब्राउ प्रोडक्ट उतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं. यू डू नॉट रियली नीड अ लॉट ऑफ देम टू डू योर ब्राउज, जस्ट अ लिटिल बिट एंड दैट्स इट. सो मैं बहुत ज़्यादा फिल नहीं करूँगी अपने ब्राउज को, जस्ट मुझे जो गैप्स दिखेंगे उनमें आई विल यूज़ दिस ब्राउ पाउडर to fill in those gaps, and that's it. And trust me, if you're not doing your brows now while doing your makeup, start doing your brows and do it once and you'll see the difference. मतलब brows ना इतना huge difference कर देते हैं ना आपके मेकअप लुक्स में, बिकॉज इट रियली मेक्स अ मेकअप लुक और ब्रेक्स अ मेकअप लुक. अगर आपने बहुत ज्यादा हार्श ब्राउज कर लिए है ना तो वो अच्छे भी नहीं लगते. सो यू हैव टू प्रैक्टिस डूइंग योर ब्राउज. लाइक जब स्टार्टिंग में मैंने भी मेकअप करना चालू किया था ना तो मैं भी अपने ब्राउज कभी कभी गलत कर लेती थी, लाइक वो या तो बहुत ज्यादा डार्क लग रहे होते थे या लग ही नहीं रहा होता था कि मैंने अपने ब्राउज किए हुए हैं. बट करते करते स्लोली स्लोली आई हैव परफेक्टेड दिस, हाउ टू डू माई ब्राउज नाइसली. सो आई थिंक यू ऑल शुड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग योर ब्राउज इफ यू डू नॉट. एंड इफ यू डू इट तो आप तो जानते ही होंगे कि कितना ज्यादा ये इफेक्ट दिखाता है आपके फेस पे. नाउ आई विल जस्ट टेक माई स्पूली एंड ब्रश इट आउट ताकि कोई भी अगर हार्श लाइन दिख रही हो उस पाउडर की तो वो ना दिखे. एंड नाउ टू सेट माई ब्राउज इन प्लेस आई एम गोइंग टू यूज अ ड्राइड अप मस्कारा. मेरा मस्कारा कोई भी आप ले सकते हैं जो बस आपका ड्राई हो चुका हो फुली, बिकॉज उसमें फिर ना बहुत थोड़ा सा टिंट रह जाता है एंड दैट रियली सेट्स अप योर ब्राउज. एंड ये जो मस्कारा है ना जो मेरा ड्राइड अप हो गया है, दिस इज फ्रॉम एसेंस और ये इतना अच्छा मस्कारा है ना, लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा टिल डेट आई हैव यूज्ड. ये आपके हाई एंड मस्कारास को भी इजीली बीट कर देगा, ये इतना अच्छा मस्कारा है. बट द सैड पार्ट इज कि आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है. इतने लंबे टाइम से आई हैव बिन आइंग ऑन दिस प्रोडक्ट बट ये चल ही आउट ऑफ स्टॉक रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टॉक में ही नहीं है. इट इज़ अ रियली गुड मस्कारा
ये वाला है, मुझे इसका प्रॉपर नाम नहीं पता है, बट इट इज़ इन दिस ऑरेंजिश काइंड ऑफ अ पैकेजिंग। अगर आपको ये कहीं स्टॉक में मिले तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट्स में बता देना और आप भी ले ही लेना, बिकॉज़ इट इज़ अ रियली नाइस मस्कारा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द आईज़। फॉर माई आई मेकअप आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी बेसिक एंड मिनिमल, बिकॉज ये एक बहुत ही एवरीडे काइंड ऑफ अ लुक है। तो इस पैलेट में ना 5 शिमर शेड्स एंड 5 मैट शेड्स और 2 क्रीम शेड्स भी दिए इन लोगों ने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये जो इन्होंने थॉट लाया ना क्रीम शेड्स देने का, दैट इज़ वेरी गुड। मतलब आई रियली लाइक द थॉट ऑफ गिविंग अ नाइस क्रीम शैडोज, बिकॉज उससे ना कलर पे ऑफ बहुत अच्छा आता है। एंड दिस स्पेसिफिक पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन इज जस्ट सो 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 गुड। मतलब मेकअप रेवोल्यूशन भी ना एज अ ब्रांड इतनी अच्छी ब्रांड है ना, इट रियली मेक्स नाइस प्रोडक्ट्स। एंड उनकी क्वालिटी, उनका मतलब अफोर्डेबल भी होते हैं, मतलब बहुत अफोर्डेबल तो नहीं बोलूँगी, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे प्रोवाइड प्राइस उनकी काफ़ी सही है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दी डार्क cream shade that is provided on that palette, and I am slowly going to place it on my lid, and I will just blend it very light handedly. Don't mind if I look there, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा मिरर रखा हुआ है तो मैं बस उसमें देख रही हूँ, बिकॉज कैमरा में उतना क्लियर नहीं दिखता है। आईज का मेकअप बहुत ही प्रिसीजन से करना होता है, जो कैमरा पे उतना प्रिसाइजली देखना पॉसिबल नहीं है। Yeah, I am going to do the same on the other eye, just taking this cream shade from this palette and putting it। मतलब ये मैंने अभी क्यों किया, मुझे इतनी आदत है ना ये करने की कि मतलब क्रीम प्रोडक्ट के साथ ये करने का क्या मतलब है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ऑन दिस आईलिड एंड आई डू द सेम। बहुत ही धीरे धीरे इसको प्लेस करूंगी एंड देन आई जस्ट ब्लेंड इट। अगर आप क्रीम शैडोज एज अ बेस यूज करते हो ना, तो उसके ऊपर जो भी आप अपना पाउडर शैडो भी यूज करोगे ना, वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है, बिकॉज ऑब्वियसली क्रीम प्रोडक्ट्स लास्ट अ बिट लॉन्गर देन द पाउडर प्रोडक्ट्स, क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट्स ही वही होते हैं जो सबसे पहले उड़ते हैं आपके मेकअप में, बट क्रीम प्रोडक्ट्स लास्ट यू रियली लॉन्ग। एंड दैट्स वाई आई ट्राई टू यूज मोर क्रीम एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स इन माई मेकअप रूटीन्स, क्योंकि वो आपके मेकअप पे काफी ज्यादा लॉन्ग लास्ट करते हैं। एंड नाउ आई टेक अ ब्राउन शैडो, जो कि उसका पाउडर्ड वर्जन है, उसको लेके मैं बस इस क्रीम शैडो को प्लेस कर दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ अपने आई मेकअप में, बिकॉज आई रियली वांट दिस मेकअप टू लुक वेरी मिनिमल एंड एवरीडे काइंड ऑफ अ लुक। तो उसके लिए आई मेकअप में बहुत ही सटल और बेसिक सा ही रखने वाली हूँ। तो आई हैव जस्ट टेकन द पाउडर्ड शैडो, जो सेम कलर में मैंने क्रीम शैडो में लिया था, और उसी को मैंने अपने आईलिड्स पे फिर से ब्लेंड कर दिया है all over my eyelids. And now what I'll do is I'll take a smaller brush और सेम आई शेडो को मैं अपने लोअर लिड पे भी लगाऊंगी। ये एक बहुत ही छोटा सा स्टेप होता है, बट इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर आई मेकअप। काफ़ी लोग इस स्टेप को नहीं करते हैं, बट इस स्टेप से क्या होता है ना, अगर आप अपने लोअर लैश लाइन में काजल लगाते हैं ना, फिर तो आपको ये स्टेप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना आप अगर ब्लैक काजल लगाओगे एक ब्राउन आई शेडो के ऊपर, तो वो बहुत ही उभर के आता है, लाइक वो बहुत दिखता है। मतलब अभी मैं लगाऊंगी तब आप देखोगे, इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ आई विल टेक अ ब्लैक काजल पेंसिल एंड आई विल टाइट लाइन माई आईज विद दिस। मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी और मैं इनको टाइट लाइन भी करूंगी अपने आईलिड्स पे। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक द सेम काजल और मैं अपने अपर आईलिड पे एक बहुत ही छोटी सी लाइन बनाऊंगी नियर माई लैश लाइन, बहुत ही पतली सी। मेक श्योर बहुत ज्यादा बोल्ड ना हो, जस्ट एक डेफिनेशन देने के लिए मैं बस एक बहुत छोटी सी लाइन बनाऊंगी अपने लैश लाइन के बहुत पास। एंड नाउ आई टेक अ स्मॉलर ब्रश और उससे मैं इसको थोड़ा सा स्मच कर लूंगी। कैन यू सी, इस छोटे से स्टेप की वजह से एक डेफिनेशन आ गई है मेरी आईज में। एंड नाउ आई टेक अ आई लैश कर्लर और इससे मैं अपनी लैशेस को कर्ल करूंगी, बिकॉज इसके बाद अगर आप मस्कारा लगाओगे ना, तो आपकी लैशेस बहुत ही लिफ्टेड लगेंगी। लाइक अगर आपकी लैशेस बहुत ही फ्लैट है ना, लाइक होता है बहुत से लोगों की लैशेस एकदम ऐसी सीधी होती है, किसी किसी की कर्वी होती है, तो यू शुड यूज अ आई लैश कर्लर बिफोर अप्लाइंग मस्कारा। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस और आपकी आई लैशेस भी काफी प्रिटी लगती है। बट मेक श्योर कि आप ये स्टेप बहुत ही ध्यान से करें, बिकॉज इट इज अ थोड़ा सा रिस्की स्टेप। आप अपनी आई लैशेस को हर्ट मत कर लेना बस इसकी वजह से। नाउ आई विल टेक अ मस्कारा और मैं बहुत अच्छे से लगाऊंगी मस्कारा। मतलब आई विल गो ओवर बोर्ड विद माई मस्कारा, बिकॉज आई रियली लाइक वॉल्यूमिनस एंड लेंदी लैशेस। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू गो ओवर बोर्ड विद माई मस्कारा एंड सी मेरी लैशेस कितनी प्रिटी वॉल्यूमिनस और लेंदी लग रही है। मस्कारा अच्छे से अगर आप लगाओगे ना, आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती है। एंड नाउ आई विल टेक अ गोल्डन शिमर एंड इसको मैं छोटे से ब्रश से पिकअप कर लूंगी और अपने इनर कॉर्नर्स में लगा लूंगी। दिस स्टेप रियली हाईलाइट्स योर आईज। बहुत प्रिटी सा एक
इनर कॉर्नर हाईलाइट देता है आपके आईज को, और आपकी आईज बहुत ही ऐसे पॉपअप करती है। लाइक सी, इसने इंस्टेंटली कैसे मेरी आंखों के इनर कॉर्नर्स को ऐसे पॉपअप कर दिया, मेरी आईज एकदम पॉपअप सी लग रही है। आई रियली लाइक डूइंग दिस स्टेप बिकॉज ये आपकी आंखों को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। सो नाउ वी आर डन विद मोस्ट ऑफ आवर मेकअप, अब सिर्फ लिप कॉम्बो ही रह गया है। बट फर्स्ट मैंने जो लिप बाम लगाया था मैं उसको वाइप ऑफ करूंगी, क्योंकि अगर आपने लिप बाम लगाया है ना तो लिप बाम हटाना मत भूलिएगा, वरना अगर आप लिप बाम लगे हुए लिप्स पे लिपस्टिक लगाएंगे तो वो आपका कलर पे ऑफ वैसा देगी ही नहीं जैसा उसका कलर है, और एक अजीब सा ही फॉर्मूला हो जाएगा। तो मेक श्योर आपने जो लिप बाम लगाया आप उसको रिमूव कर लें। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई फेवरेट लिप लाइनर विच इज दिस वन फ्रॉम मार्स। मार्स मेक्स वन ऑफ द बेस्ट लिप लाइनर्स। मार्स के लिप लाइनर्स इतने अच्छे हैं ना, और द बेस्ट पार्ट इज की 69 या 70 रुपीज के आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। नाउ आई विल टेक दिस लिपस्टिक फ्रॉम लव अर्थ, जो कि बहुत पिगमेंटेड और बहुत प्यारी लिपस्टिक है। इन लिपस्टिक्स का इतना प्यारा पिगमेंट है ना, वन स्वाइप पिगमेंट और कलर पे ऑफ देती है। आई रियली लाइक द फॉर्मूला ऑफ दीज लिपस्टिक्स, बहुत ही कंफर्टेबल ऑन योर लिप्स है। नाउ आई विल मिक्स लिटिल बिट ऑफ दिस मैक लिपस्टिक टू मेक अ नाइस लिप कॉम्बो, and we are done with most of our makeup. Now it is time for my favorite part which is bindi, but I'm really confused, मुझे छोटी वाली बिंदी लगानी चाहिए या ये बड़ी वाली। I think I should apply the smaller one. मुझे छोटी बिंदी बहुत ज़्यादा ही छोटी लग रही है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू अप्लाई द बिगर वन ओनली। मुझे पहले ही अपने दिल की सुननी चाहिए थी, मेरा दिल बोल रहा था कि मैं बड़ी बिंदी लगाऊं, बट नेवर माइंड। ऐसी लाइफ डिसीजंस लेती हूँ मैं, इधर उधर जा जाके फिर आ जाती हूँ लौट फिर के उन्हीं चीज़ों पे जो मेरा दिल बोल रहा होता है। तो इट्स ओके, नाउ आई अप्लाई द बिगर वन। एंड या ये मुझे ज़्यादा प्रिटी लग रही है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय।